Since we are meeting on a gap of a day, so I will just give you an overview what we have done till now. So we have just started with the introduction to analytics. We have understood the meaning of analytics, that is using of tools and techniques to convert data into business insight. Then we have already done how is it done, that what is the process. So I've explained you the process that before actually starting with the process, there are 3 preliminary steps जो हमें करने पड़ते हैं. Analytics का process start करने से पहले initially number 1 we have to identify the business problem. कि business problem क्या है, क्या question हमने solve करना है, क्या problem है जिसका solution हमें निकालना है. Okay? Because उसका solution निकालने के लिए ही आप data gather करोगे, data के ऊपर tools लगाओगे और analytics करोगे. The first step, the first preliminary step is to identify the business problem. Then before actually solving the problem, आप उससे पहले एक plan of action बनाओगे. You will plan your work, that how you will go ahead with solving that problem. Okay? So you will make a plan on the paper that what kind of data will be required, वो data आपको कहाँ से मिलेगा, what will be the quality of the data, how frequently you need to collect the data. So आपको पहले अपना जो है काम plan करना पड़ेगा कि whether that analysis is feasible or not. So actually भी उसको करने से पहले आपको उसको pen down करना पड़ेगा. You have to plan your work that how and from where the data will be available for conducting analysis. Then जब आपने एक प्लान बनाया, वो प्लान को आपको जो टॉप मैनेजमेंट है उससे अप्रूव कराना पड़ेगा. बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू आर बिजनेस एनालिस्ट. आपको एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए कहा गया है, उसके लिए आप डेटा गैदर कर रहे हो, उसके ऊपर टूल्स लगा रहे हो. सो बिफोर एक्चुअली गोइंग अहेड विद दैट, आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं. सो आपको उस प्लान को फाइनलाइज करने से पहले यू नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट. और वो अप्रूवल आपको तभी मिल सकती है when the benefits of that data analysis they are more than the costs of the analysis. So हम कोई काम तभी करते हैं ना जब उस काम से होने वाला फायदा ज्यादा है as compared to उस काम को करने की जो costs होती हैं. Just give me a minute. So definitely the costs they should be less than the benefits. Only then the plan will be approved by the top management. So once the plan is approved, then you have to actually start with the process. मतलब data analysis का process आप start करोगे. So उसमें the first step I have told you, the first step is to grab the data. That means to collect the data. Then to store it. उस data को store करना है. तो usually हम data को Excel file में store करते हैं. Fact figures होते हैं ना, तो figures को हम Excel में store करते हैं. But there are also other ways of storing the data. The most popular way of storing the data is in Excel. जैसे अगर मुझे क्लास का, मैंने अपनी पूरी क्लास का डेटा स्टोर करना है, मैंने स्टूडेंट के नेम लिखे हैं, रोल नंबर लिखे हैं, देन उनके परसेंटेजेस लिखे हैं, सो मैं उसके लिए एक्सेल फाइल बनाती हूँ. एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा. देन आफ्टर स्टोरिंग इट यू नीड टू क्लीन द डेटा. दैट मींस यू नीड टू रिफाइन द डेटा. So I'm telling you since the beginning कि जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, entire data is not good data. जो डेटा आपके पास है, रॉ डेटा, सारा का सारा डेटा करेक्ट नहीं होता, उनमें से कुछ गलत हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है. Some could be messy data और some could be garbage data. So आपको उस messy और garbage data को अपने डेटा सेट में से निकालना पड़ता है. मतलब आपको अपने डेटा सेट को रिफाइन करना पड़ता है उसके ऊपर टेस्ट लगाने से पहले. अगर आप सारे डेटा के ऊपर टेस्ट लगा दोगे वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा. सो इसलिए क्या हम इनपुट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट कैसा निकल कर आएगा. तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, अगर उसमें मैं खराब रॉ मटेरियल लगा रही हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट भी कोई अच्छी क्वालिटी का बनकर नहीं आएगा. So similar is the way in data analytics. So अगर मैं खराब डेटा डाल रही हूँ, अगर मैं गुड डेटा के साथ मेसी डेटा और गार्बेज डेटा भी इनपुट कर रही हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट देगा. जो मैं इनपुट डालूंगी वैसा ही मुझे आउटपुट मिलेगा. तो मेरा इनपुट सही होना चाहिए. जो मैं मेसी डेटा है और गार्बेज डेटा उसको मैंने निकालना है, फिर मैंने अपने डेटा को प्रोसेस करना है. देन डेटा क्लीन करने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने, मतलब मैंने उसके ऊपर टेस्ट लगाने हैं. ओके, सो अ वेरी सिंपल एग्जांपल कुड बी, मेरे पास आई हैव डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट नंबर 1 उसके मार्क्स हैं 65, स्टूडेंट नंबर 2 है उसके मार्क्स हैं 45, स्टूडेंट नंबर 3 उसके मार्क्स हैं 50, स्टूडेंट नंबर 4 उसके मार्क्स हैं 80, स्टूडेंट नंबर 5 उसके मार्क्स हैं 87. तो ये है डेटा.
अब मैंने इसका मीन कैलकुलेट करना है, so calculation of mean is one of the part of analyzing. So analyzing data मतलब उस डेटा के ऊपर कुछ टेस्ट लगाना, कुछ टूल लगाना, कुछ कैलकुलेशन करना, ताकि हमारे पास एक सिंगल फिगर आ जाए जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करे. तो हम इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, because you can easily calculate the mean. इनका सम करके हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो वो मीन आ जाएगा, एवरेज. सो मीन निकालना मतलब मैं डेटा को एनालाइज कर रही हूँ, मैं डेटा के ऊपर कुछ टेस्ट लगा रही हूँ, कुछ टूल लगा रही हूँ. मीन तो सबसे सिंपल, एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है. सो एनालाइजिंग मीन्स उस डेटा के ऊपर टेस्ट लगाना कि ताकि हमें उस डेटा से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आए. सो अगर इसका मैं मीन निकाल लेती हूँ तो मुझे इस सब इन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स याद करने की जरूरत नहीं होगी. मैं सिर्फ वो एक सिंगल फिगर याद कर लूंगी तो मुझे लगेगा कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस फिगर के आसपास ही हैं. मीन मीन्स द एवरेज फिगर जिसके अराउंड जो है सारी एंट्रीज रिवॉल्व करती हैं. सो दैट using tools and techniques is called as analyzing. Then after that I will visualize the data. विजुलाइज मतलब मैं उसको चार्ट्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, पाई चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करूंगी ताकि उसको जो है अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो देखने वाले को वो अट्रैक्टिव लगेगा. So I can also present my results in the form of pictures, pie charts, graphs and all that. Okay? अगर मैं यही है जो बच्चों के मार्क्स हैं इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं, okay? दैट यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मार्क्स हैं. So एक स्टूडेंट के मार्क्स 65, okay? Then 45, then okay, 50, okay, then 80, then 87. So this is in this way I can present it in the form of a picture or a graph. That is called as visualizing the data. Then interpreting the data. Interpreting मतलब उस डेटा के बारे में हमें जजमेंट देनी कि जो हमारा मीन आया है, अगर मेरा कोई भी मीन आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली 68, ऐसे ही मैं आर्बिट्री फिगर ले लेती हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लो, इसके अराउंड ही आएगा. तो मीन 68 और मैं कहती हूँ कि क्लास के जो है मार्क्स 68 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अराउंड 100. सो कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, एवरेज जो है हमारी कम है. सो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली ये फिगर जो आई है अच्छी है या बुरी. दैट इज गिविंग योर ओन जजमेंट, योर ओन ओपिनियन अबाउट द रिजल्ट्स व्हिच हैव कम आउट फ्रॉम दैट एनालिसिस. दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन. सो यहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में. So we have understood what is meant by data analytics with the help of examples मैंने आपको समझाया, and we have understood what is the process of analysis. हम कोई भी data analytics करते हैं उसमें यही process follow होता है. Whatever problem we are solving, this process is followed. Now, moving on to the next topic, that who is using it. So, कौन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा? मैंने इसका आंसर आपको जनरली बताया हुआ है. कौन यूज करता है डेटा एनालिटिक्स? एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज और एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री? कौन से टाइप की कंपनीज डेटा यूज करती हैं? यस, एनीबडी? आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. And those companies who want to launch a new product and they want to market research. Okay, this is one example. It's a good example, but सिर्फ यही कंपनीज यूज करती हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा? No ma'am, there are various. Yes, definitely there are various companies. So is there any specific type of company जो data analytics use करती है? Yes or no? हाँ जी कंचन, बच्चे आप बताएंगे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं जो डेटा एनालिटिक्स यूज करती है? Yes or no? Just give me answer in yes or no. No ma'am, पता नहीं. Okay, पता नहीं, ठीक है. So who all says yes that कोई specific type of companies होती हैं that use data analytics? IT कंपनीज भी होती है मैम. No. सिर्फ IT कंपनीज के पास डेटा होता है? Other companies don't have data? So, बच्चे every company has data. कोई भी बिजनेस है, चाहे ABC बिजनेस, एनी बिजनेस इन एनी इंडस्ट्री,
Yeah, that is the biggest myth that IT companies ही data analytics use करती हैं. Why? Data analytics को अपनी IT के साथ confuse नहीं करना है बिल्कुल भी. Data analytics मतलब data को analyze करना, data को study करना. Okay? So data हर एक company के पास है. Every company has abundant data. So every company uses data analytics. So there is no specific stream, there is no specific type or industry of of companies that uses data analytics. All the companies across the world, they can use data analytics. Data तो हर एक company के पास होता है, ठीक है? Like let me give you any type of companies, like our college. Our college has data. What type of data? Data of faculty, data of students, data of admissions. So we have data. A hospital has data of the patients that are coming up. Patients की क्या problems हैं, ये कितनी देर में discharge हो जाता है. So every organization, every company has data. So there is no limit कि data analytics की एक specific industry में use होता है. Data analytics is used everywhere in every company of the world, every organization of the world, because the data is available with every company. एंड IBM ने एक स्टडी की है कि जितना लास्ट 2 years में डेटा जो है इकट्ठा हुआ है, इतना कभी आज तक वर्ल्ड में नहीं डेटा इकट्ठा हुआ जितना लास्ट 2 years में हुआ. So that means every company has abundant data. So there is no limit as to which type of companies will use data analytics. Every company in the world currently now has started using data analytics. So these are some of the popular companies across the world जो डेटा एनालिटिक्स को यूज करती है. डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिग डेटा, इसको मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम से हम जानेंगे. डेटा साइंस हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, देन डिसीजन साइंस हो गया, सो डेटा माइनिंग हो गया. ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बट सबका मतलब एक ही है कि हम डेटा को जब प्रोसेस करते हैं, उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डेटा एनालिटिक्स. So all these companies across the world, सभी companies के नाम आपने सुने हुए हैं? All of you have heard about these companies? Yes, ma'am. So all these companies in the world, they use data analytics. So मैं सभी ये जो हैं आपके सामने companies depicted हैं, मैं इनको with example I'll tell you how they use data analytics. सबने कभी ना कभी Amazon से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा. All of you are using Amazon? Yes or no? Yes, ma'am. ओके आप जब ऑर्डर करते हो, मैंने कोई चीज विश लिस्ट कर ली, या मैंने कोई चीज, आई एम अ वेरी रेगुलर ऑनलाइन बायर, ठीक है, सो मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है बाइंग करती हूँ. सो Amazon इज डेफिनेटली द वन ऑफ देम. सो व्हेनेवर यू पुट एनीथिंग इन योर कार्ट मतलब आपका शॉपिंग कार्ट, या आप कोई चीज विश लिस्ट करते हो, स्पेशली Amazon पे, अब आप ये करना है, आपने घर जाके करके, आप डेफिनेटली घर पे ही हो, आफ्टर क्लास आपने ये चीज करके देखनी है. आप Amazon में कोई चीज सेलेक्ट करोगे, आप उसको कार्ट में डालोगे, ठीक है. कार्ट में डालने के बाद जब आप एक बार नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको सजेशंस आ जाएंगे कि कस्टमर्स जिन्होंने ये चीज खरीदी, उन्होंने साथ में ये चीज भी खरीदी है, ठीक है. सो मतलब वो कस्टमर्स का डेटा एनालाइज कर रहा है कि जो भी कस्टमर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके साथ वो ये वाला प्रोडक्ट भी खरीदता है. या फिर आपको और जो है, जो चीज आपने कार्ट में डाली उसके अलग अलग और जो ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के नीचे इंफॉर्मेशन आ जाएगी दैट यू मे ऑल्सो लाइक, कि आपको ये चीजें भी पसंद आ सकती हैं. वो आपके जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए उससे रिलेटेड हो सकती हैं, उसके साथ यूज करने के लिए हो सकती हैं. सो दैट इज व्हाट, दैट इज डेटा एनालिटिक्स. Amazon क्या करता है, कस्टमर का डेटा एनालाइज करता है कि कस्टमर अगर ये प्रोडक्ट ए खरीद रहा है तो वो यूजुअली उसके साथ ये प्रोडक्ट बी भी खरीदते हैं. सो जब मैंने प्रोडक्ट ए कार्ट में डाला, मुझे साथ ही नीचे सजेशन आ गई कि साथ में आप ये, यू मे ऑल्सो लाइक टू बाय दिस प्रोडक्ट because customers who have bought this product, they have bought this and this together, so you may also like to buy this and this together. That is analytics, that is data analytics. Then all of you use Facebook आप यूज करते हैं, ठीक है. फेसबुक में क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा, लाइक आपका अपने आप एक फेसबुक पे वीडियो बनकर आ जाता है ऑफ योर मोस्ट लाइक्ड पिक्चर्स. कभी नोटिस किया आपने, कोई ऐसे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये आपकी इस साल की सबसे ज्यादा लाइक्ड पिक्चर है, इस पे सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं. या कभी कभी अपने आप ही ऑन योर बर्थडेज और एनिवर्सरीज एक वीडियो सा बन के आ जाता है,
ये उसमें क्या होता है, आपकी जो पिछले साल के बर्थडे की पिक्चर्स होती हैं वो कंपाइल करके आपका एक वीडियो बन के आ जाता है। दैट इज व्हाट, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। यहाँ फेसबुक पे कुछ भी, आप गूगल है, ठीक है, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, यू सर्च समथिंग ऑन द गूगल, तो आपके पास उस सर्च से रिलेटेड साथ में एड्स आती रहती हैं। हाँ जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ऑल ऑफ यू यूज गूगल फॉर सर्चिंग समथिंग, ठीक है, जब आप गूगल यूज करते हो, मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे उससे रिलेटेड एड्स आने लग जाती हैं साइट पे। What is that? That is it, data analytics. It is search engine optimization. आप डिजिटल मार्केटिंग आपने पढ़ा भी है, आप इस सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो है एडवर्टाइजमेंट्स आपकी साइट पे आने शुरू हो जाती हैं। तो वो कस्टमर्स की जो है प्रेफरेंसेस, कस्टमर की सर्च को ऑप्टिमाइज करता है, उसको स्टडी करके आपके जो है साइट पे उसी तरीके की सजेशंस आने लग जाती हैं। ठीक, इंस्टाग्राम आप सब यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे अगर मैं किसी तरीके का पेज सर्च करती हूँ, ठीक है, सो इफ आई हैव सर्च्ड एनीथिंग, मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट सर्च किए हैं, सो मुझे जो है मेरी न्यूज फीड में या मुझे जो मेरे सर्च वाले ऑप्शन है उसमें मेकअप आर्टिस्ट की और सजेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। सो जिस तरीके का मैं सर्च करूंगी मुझे वैसे की और पोस्ट और दिखनी शुरू हो जाएंगी, वैसे के पेजेस और दिखने शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली एप्पल, some of you might be having Apple iPhones, ठीक है, so it's not only about Apple, it's also about other Android phones। तो उसमें क्या होता है, there is a health app, हेल्थ ऐप होती है एप्पल आईफोन में स्पेशली होती है, दैट मॉनिटर्स योर हेल्थ। जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है, ठीक है, स्मार्ट वॉच अगर आप, हेल्थ बैंड होते हैं जो आप सारा दिन पहन के रखते हो, दे मॉनिटर योर पैटर्न, वो मॉनिटर करते हैं कि आप कितनी देर के बाद उठते हो, किस टाइम पे आप सोते हो। सो अल्टीमेटली उसको थोड़े दिन के लिए मॉनिटर करना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आप 10 o'clock के अराउंड सो जाते हो, तो 10 o'clock अगर आपने वॉच पहनी तो 10 o'clock पे आपको रिमाइंड कर देगा दैट दिस इज योर टाइम टू स्लीप। आपने तो नहीं बताया उसको, आपने तो फीड नहीं किया, बट उसने मॉनिटर किया कि 10 o'clock, अगर आप कंटिन्यूसली 24 आवर्स वॉच पहन के रखते हो, तो जब आप जो है जैसे आप सोते हो तो वो डेफिनेटली उसको वो सेंस कर लेता है दैट द पर्सन हैज गॉन इनटू स्लीप। सो वो आपके स्लीप पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, वो देखता है कि आप 10 से 10:30 के बीच में सो जाते हो, सो आपको उस टाइम पे आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा दैट दिस इज नाउ योर टाइम टू स्लीप। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो एनालिटिक्स। सिमिलरली नेटफ्लिक्स आप देखते हैं, नेटफ्लिक्स में लाइक आप जो भी शोज वॉच करते हो, जो भी सीन सबसे ज्यादा वॉच किए होते हैं, वो सीन्स जो है वो शोज के टाइटल पे शो किए जाते हैं, या उसी तरीके के शोज की आपको और सजेशंस आती हैं। सिमिलरली मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स, ऑल ऑफ यू माइट हैव विजिटेड मैकडोनल्ड्स, आपने कभी ड्राइव थ्रू लिया होगा, आप टेक अवे लेते हो, उसमें क्या करते हो, एंड यू सिलेक्ट द मेन्यू एट द वन काउंटर, यू पे एट द अनदर काउंटर एंड यू गेट द डिलीवरी एट द थर्ड काउंटर। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें भी वो डेटा एनालिटिक्स उन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि कितना टाइम किसी को जो है यूजुअली एवरेज कस्टमर को ऑर्डर देने में लगता है, कितना टाइम उसको पे करने में लगता है, कितना टाइम उसको पिक करने में लगता है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है वो डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग दे हैव फाइनलाइज्ड। So that is also data analytics. So you can see these companies are all from different industry. Okay, so there is no limit, there is no type of company that, or and it's जैसे मैंने कोई भी IT company का example, although there are few, but it's not that it is only limited to IT companies. Any company can use data analytics because data is available with each and every company. So I hope I am able to make you understand that how these companies are using data analytics in your daily life. All of you have used this Facebook, Amazon, Google, Instagram, Netflix, okay, and these, and so you can now make out that जो चीजें आपने कभी observe नहीं करी होंगी, they are data analytics only. They are the result of data analytics. So this is how it is used in our daily life, and so all the type of companies, they are using data analytics. Any doubt till now? No, ma'am. Okay. Now moving on to what are different types of analytics.
बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, कि मतलब एनालिटिक्स में आपने करना क्या है, क्या चीज निकालनी है, किस क्वेश्चन का आंसर निकालना है. सो उसके बेसिस पे एनालिटिक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट, descriptive analysis, predictive analysis, and prescriptive analytics. So these are the 3 types of analytics. 3 types किसके बेसिस पे डिसाइड हुए कि हमने किस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है. तो जो है descriptive analysis, it help us in knowing that what was happened in the past. डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव. सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मींस कि पास्ट में क्या हुआ उसको डिस्क्राइब करना, दैट व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसको डिस्क्राइब करना. लाइक मेरे आई एम वर्किंग इन अ बैंक और मुझे कहा गया है कि अपने सारे कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा करके लेकर आओ इन एन एक्सेल फाइल. या फिर इफ आई एम द क्लास इन चार्ज ऑफ MBA 3A, तो मुझे बोला गया कि MBA 3A के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लेकर आओ along with their roll number, their phone number, contact number, their father's name, their address. So वो मैं क्या कर रही हूँ, I am describing my students. There are 41 students, उन 41 students का मैं phone number, उनका roll number, father's name और उनका address लेकर आऊंगी इकट्ठा करके. That is what I am doing. I am describing my class. I am describing MBA 3A. I'm collecting their characteristics. So that is called as descriptive analytics. So which has already happened. So वो डेटा मैं सिर्फ कलेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट का ये फोन नंबर है, ये एड्रेस है, ये फादर्स नेम है, ये रोल नंबर है. सो आई एम डिस्क्राइबिंग ईच ऑफ माय स्टूडेंट. दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. सो इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट और उसको डिस्क्राइब करना, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना. एक होता है एनालिटिक्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रिडिक्टिव क्या होता है, प्रिडिक्शन क्या होता है, फ्यूचर के लिए कुछ बताना कि फ्यूचर में ये होगा. सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मींस व्हाट माइट हैपन. लाइक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कैसे यूज होता है, किसमें यूज होता है, वेदर एप्स. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई एम गिविंग यू. जो आपकी वेदर एप्स होती है, आप उसमें खोलते हो तो उसमें आता है ना कि कल के दिन अगर बारिश हो सकती है तो कितने % चांस है. There is a chance of rain and there is 46% chance of rain. साथ में percentage लिखी होती है. So that is what they are predictive analytics. That what might happen in the future. You give the possible outcomes कि ये हो सकता है और इतने % probability है कि ये हो सकता है. That is predictive analytics. Third is prescriptive analytics. Prescriptive कहाँ से आया है word, prescription से. प्रिस्क्रिप्शन, अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है दैट यू शुड ईट दिस मेडिसिन इफ यू वांट टू, मतलब अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको ये वाली मेडिसिन लेनी. तो व्हाट इज दैट, दैट इज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. सो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको क्या बताता है कि आपको क्या करना चाहिए. व्हाट शुड यू डू इफ यू वांट टू अचीव सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स. दैट इज कॉल्ड अ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. सो एनालिटिक्स, इसके अलावा भी और बहुत सारी टाइप्स होती है, बट बेसिकली वी कैन narrow them down to these 3 types. Descriptive, that what has happened in the past, उसको डिस्क्राइब करना. Predictive, कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड प्रिस्क्रिप्टिव, कि मतलब आपको what should you do if you want to achieve such kind of results. So these are some of the examples that are written for both. So एक तरफ डिस्क्रिप्टिव लिखा है और एक तरफ प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव लिखा है. इनमें एक लाइन है दोनों में. क्यों? बिकॉज डिस्क्रिप्टिव इज कंसर्न्ड विद द पास्ट, whereas predictive and prescriptive they are concerned with the future. So there are some of the examples. In descriptive we do, हम describe करते हैं कि हमारी what were our sales, हमारी past में कितनी sales थी. What was our market share, हमारा पिछले साल में मार्केट शेयर कितना था या पिछले 5 सालों में हमारा मार्केट शेयर कितना था. what product was most popular, कि पिछले साल में हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर रहा. तो मैं क्या करूंगी, अपने सारे प्रोडक्ट की सेल्स देखूंगी, जिसकी सेल सबसे ज्यादा रही वो मेरा सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट था. सो बट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्लू में हाईलाइटेड है वर, was and was, that means it is concerned with past.
पास्ट में जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव। एक सिंपल से एग्जांपल है, व्हाट विच प्रोडक्ट वाज अ मोर पॉपुलर, हमारे कि हमने देखना है कि 2020 में हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। तो मैं अपने, मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, मैं 5 प्रोडक्ट की सेल्स देखूंगी, जिसकी सेल सबसे ज्यादा रही वो मतलब मेरा प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना। The next is predictive or prescriptive, that is concerned with future. So if you see the examples, that what are our expected sales, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी 2023 में कितनी सेल्स होंगी, या व्हाट विल बी आवर एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर, और व्हाट प्रोडक्ट शुड वी मार्केट टू देम, हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए कस्टमर को अगले साल ताकि हमारी सेल्स बढ़े। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड और विच शुड, दैट मीन्स we are concerned with the future here. So in descriptive analytics, we are concerned with the past, whereas in predictive, we are concerned with the future. Right? So all of you are clear with the types of analytics here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So lastly, there's one more example that has been given over here. That is a company named as Capital One. Okay. So इस कंपनी ने डेटा एनालिटिक्स को कैसे यूज किया? सो कंपनी के पास जो है, कंपनी ये जानना चाहती थी कि वो अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर दे, पर वो अपने सारे कस्टमर्स को सेम ऑफर नहीं देना चाहती। सो कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास जो भी डेटा अवेलेबल था अपने कस्टमर्स का, कंपनी ने उस डेटा को फीड किया और सेगमेंट बना दी कस्टमर्स की, मतलब कस्टमर्स को क्लासिफाई कर दिया, और देन उन्होंने उन कस्टमर्स को कॉल किया और उनकी प्रेफरेंसेस जानी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने हर एक कस्टमर को एक अलग ऑफर दिया। सो एक कंपनी वांटेड टू गिव टेलर्ड ऑफर्स, मतलब कस्टमाइज्ड ऑफर टू देयर कस्टमर्स, कि वो एक सेम ऑफर नहीं देना चाहते थे अपने सभी कस्टमर्स को, दे वांटेड टू कस्टमाइज, दे वांटेड टू गिव टेलर्ड ऑफर्स, टेलर्ड मतलब व्हिच आर designed as per the needs and specification of these customers. तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया, उसको सेगमेंट किया, मतलब कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, देन दे कॉल्ड अप देयर कस्टमर्स एंड देन दे टेलर्ड देयर ऑफर्स, मतलब उन्होंने अलग अलग जो कैटेगरीज बनाई थी, हर एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को अलग अलग ऑफर्स दिए डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इससे क्या था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनकी बढ़ गई, बिकॉज दे वर गिविंग सेपरेट ऑफर्स, different customized offers to their customers depending upon what are the needs and preferences। कैसे उन्होंने गैदर की, उनको कॉल करके। सो दैट इज, दे कॉल करी उन्होंने, उनकी नीड्स इवैल्यूएट करी, फिर एक मॉडल बनाया, उस मॉडल के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट जो है ऑफर्स दिए। That is one of the example of the application of data analytics by this company called as Capital One. So इस तरीके से जो है डेटा एनालिटिक्स डिफरेंट कंपनीज में यूज होता है। Okay, any doubt till now?